This year we have declared it as a year of transformation. इस साल को जैसे हमने घोषित किया है, यह साल जो है रूपांतरण का साल है. And the Holy Spirit has been leading me on the message of transformation. और पवित्र आत्मा पासवान जी की अगुवाई कर रहा है रूपांतरण पर आधारित संदेश के लिए. I told you what is transformation. आपको ये बताया गया कि रूपांतरण क्या होता है. Transformation is not an adjustment. और रूपांतरण कोई मेल बैठाने वाली बात नहीं होती. Transformation is a complete change. और रूपांतरण एक पूरी तरह से बदलावट होता है. How many of you following me right कितना now? समझ रहे हैं? So today I want to go into that series of transformation. तो आज देखिए उसी श्रृंखला में, रूपांतरण के श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे. I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I am on a journey. ये पासवान जी एक यात्रा में है And I want you to join me along with me on that journey. और चाहते हैं कि उस यात्रा में आप सभी लोग भी इनके साथ जुड़ जाएं, Because I want to see God move in my life. क्योंकि देखना चाहते हैं परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करे. And I want to see God move through my life. और देखना चाहते हैं परमेश्वर इनकी जिंदगी के जरिए काम करे. And if you all join with me on this journey, और अगर आप इनके साथ इस यात्रा में जुड़ते हैं, I tell you आपसे कहते हैं that your life will be a blessing to thousands. आपकी जिंदगी हजारों के लिए एक आशीष बनेगी. So if you're with me today, तो अगर आज इनके साथ हैं आप, please go with me to the book of John chapter 12, please. चल निकालें यूहन्ना का 12वां अध्याय. John chapter 12, and let's read from verse 24. यूहन्ना का 12वां अध्याय और पढ़ेंगे 24वें वचन से. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. वचन में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है. But if it dies, it produces much grain. लेकिन जब वह मर जाता है तो बहुत अनाज पैदा करता है. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने, It's very interesting. बहुत ही दिलचस्प बात. Let's go to verse 25. चलिए पढ़ेंगे 25वें वचन में. He who loves his life will lose it, जो अपने प्राण से प्रेम रखता है वो उसे खो देगा, but he who hates his life in this world will keep it for eternal life. और जो इस संसार में अपने प्राण से घृणा करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा. You know, Jesus' teachings were radical. Listen carefully, don't miss this. देखिए यीशु के जो शिष्य एकदम कट्टर रहे, ध्यान से सुनिए. They were not like the teachings of the world where they said, okay, love yourself, love yourself. How many of you heard that? और देखिए सांसारिक शिक्षाओं जैसा नहीं, चलो ठीक है अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो. Jesus' teachings were completely different. यीशु की शिक्षाएं बिल्कुल ही अलग थी. And the fruitfulness and the effectiveness of this teaching was seen when a person adopted his teachings. और यीशु की शिक्षाओं का जो प्रभावशालीता और फलवंत होना जो है ये दिखाई पड़ता था जब व्यक्ति जो उस शिक्षा को अपना लेता था. Write this down. लिख लीजिए. You see, there are many philosophies that have come in this world and have gone. और देखिए बहुत सारे तत्वज्ञान इस दुनिया में आए और चले भी गए, But God's word has been the same over the centuries. लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि सदियों से एक समान बना हुआ है. Let me go to verse 26. चलिए जाते 26वें वचन में. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, the position, the place where I am, the level that I am on, there my servant will be also. Come on. यीशु ने आगे कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, जिस स्तर में, जिस स्थान में, जिस मुकाम में मैं हूं, वहां मेरा सेवक भी होगा. Praise God. So you see, Jesus is speaking about a concept called surrender. तो यहां पर हम देखते हैं यीशु समर्पण की विचारधारा को बोल रहे When हैं. the grain surrenders to the soil, it dies. जब गेहूं का दाना जब जमीन के प्रति समर्पित हो जाता है तो वो मर जाता है. And when that surrender happens, और जब वो समर्पण होता है that one grain does not remain one grain, it starts multiplying. तो वो एक दाना जो है एक दाना ही नहीं रह जाता, वो बढ़ने लगता है. How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त. See, today, look at over here what it says. देखिए आज देखिए यहाँ पर वचन क्या If कहता है. anyone serves me, if anyone submits to me, him my Father will honor. यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरे अधीन होए, तो मेरा पिता उसका आदर करेगा. Write it down. लिख लीजिए. Transformation through continuous surrender. और देखिए रूपांतरण निरंतर तौर पे समर्पित होने के जरिए. The only way we will receive a transformation in our lives is through a continual surrender to the Lord and His एकमात्र will. तरीका कि हम अपने जिंदगी में जो रूपांतरण को पा सकते हैं वो ये है कि हम निरंतर तौर पे परमेश्वर के प्रति अपने को समर्पित करते रहें. Look at somebody and say, a daily surrender. किसी को देखकर कहे दैनिक समर्पण.
Write it down. लिख लीजिए। A daily surrender, not what you did 7 years back. Oh Lord, I give my life to you. No, a daily surrender will bring a different transformation. दैनिक समर्पण, 7 साल पहले आपने कहा था प्रभु मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता, वो नहीं, रोज दैनिक समर्पण आपके जीवन में असलियत का बदलाव और रूपांतरण ले आएगा। Said everyone, a daily surrender. सभी लोग कहते हैं दैनिक यानी रोज का समर्पण। That will take you from faith to faith, from glory to glory. यही आपको विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा में ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So write down the first point. The pathway to transformation and blessing is a continual daily surrender. तो देखिए रूपांतरण और आशीष का महामार्ग जो है वो है रोज दैनिक तौर पे आप अपने को समर्पित करते हैं। Now listen. अब सुनिए, If you don't surrender daily to the Lord, you are automatically surrendering your life to the devil. देखिए अगर आप दैनिक तौर पे रोज अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आपकी जिंदगी को आप शैतान को समर्पित कर रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? Paul understood this. तो पौलुस ने इस बात को समझा And he says, और उसने कहा what is given to the Lord is able to keep it. जो कुछ प्रभु को सौंपा जाता है प्रभु उससे संभाले रख सकता है। अगर आप अपने आप को रोज सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को शैतान के हवाले कर रहे हैं। इस बात को समझ जाओ। So it's not advisable that you do that, but you must every day in the morning say, Lord, I give my desires, my life, my emotions to you, Lord. Can I have a good amen right आपको now? रोज कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को, मेरी जिंदगी, मेरी भावनाओं को, मेरे जज्बातों को सब मैं तुझे समर्पित करता हूं। Let me go to point 2. Is this blessing you already? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? You see this, the point number 2, write it down. दूसरा मुद्दा, So I just don't want to talk to you stories. I just want to give you proper word. तो सिर्फ कहानियां ही नहीं बोलना चाहते थे कि आपसे आप सही वचन भी आपके सामने पेश करना चाहेंगे। The surrendered heart or the surrendered life reminds the father of his son's sacrifice. और समर्पित हृदय जो है परमेश्वर पिता को उसके पुत्र के बलिदान की याद दिलाता है। How many of you listening, church? ये तो सुन रहे You कलीसिया। see, when Abraham put Isaac on the altar, और देखिए अब्राहम ने जब इसहाक को वेदी पर रखा, Isaac not only surrendered to his father Abraham, but also to the will of Almighty God. इसहाक ने सिर्फ अपने पिता अब्राहम के प्रति अपने को समर्पित नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए भी उसने समर्पित किया। Sir, सुनिए, जरा सोचिए ना, एक 100 साल का आदमी 20 साल के या 25 साल के लड़के को कैसे वेदी पर डाल सकता है और उसको मार सकता है? कितने लोग सुन रहे हैं? आज बाप माँ बोलती है, जरा बेटा थोड़ा वो काम कर, बोले चाबे कम ऑन, यस और नो। सुनते नहीं आजकल, और भाई साहब यहां पर मरने की तैयारी कर रहे हैं। You see, not only the obedience of Abraham, I told you last time, but the surrender, the submission of Isaac. और देखिए यहां पर अब देखते हैं अब्राहम का सिर्फ आज्ञा मानना ही नहीं, लेकिन यहां पर साथ ही इसहाक का समर्पण होना भी। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे हैं, That surrender वो समर्पण to God परमेश्वर के लिए reminded the father of Jesus. पिता को यीशु की याद दिलाता है। How many of you listening right now? कि तो समझ रहे हैं। So every time you surrender to the will of the father, तो हर बार जब आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करते हैं, the father remembers his son Jesus and the blessings come upon you. तो पिता अपने पुत्र यीशु को याद करता है और आशीष आप पर आ जाती है। That's why he provided. Everyone say he provided. इसीलिए देखिए वो पूर्ति करता है। Praise the Lord. Is anybody understanding over here? The moment you surrender, there is the power of resurrection will begin to work in you. जिस पल आप अपने को समर्पित करते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ आप पे काम करने लगेगी। That's why Isaac could come back. और इसी वजह से इसहाक वापस आ पाया। Oh, you did not understand. नहीं समझे आप? In Hebrews it is written, अब्राहम अपने सेवकों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर ठहरो, हम लोग वर्शिप करके वापस आएंगे। वो मुंह से कबूली करता है कि मेरा बेटा मरेगा नहीं, वापस आएगा। Surrender समर्पण releases the power of resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ को मुक्त करता है। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा होने दे। That's why Jesus could come back from the cross. Hallelujah. इसलिए यीशु क्रूस पर से वापस आ पाए। He on the cross, he said, उसने कहा क्रूस पर उठा, Father, I surrender. उसने कहा पिता मैं समर्पित करता हूँ, To your hands I commit my spirit. तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। Boom, the power of resurrection began to work. तुरंत पुनरुत्थान की सामर्थ में काम करने लगी। जब भी आप अपने आप को
प्रभु के इच्छा के हवाले करते हैं, अपनी इमोशंस के नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं करूं, अभी नहीं, बस 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 बस। अरे बस क्या बस, प्रभु क्या चाहता है वो करो। तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, घर में थोड़ा झगड़ा हुआ, तो तुम कुछ अपना ही डिसीजन ले लेते हो। वो सरेंडर नहीं कहता, बोले बस ये ले टॉवल, डाल दिया टॉवल। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। आपको अपने को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित व्हाट डज करना द है। लॉर्ड वांट फ्रॉम मी? प्रभु मुझसे क्या चाहता है? व्हाट इज गॉड सेइंग इन दिस मोमेंट? परमेश्वर इस पल में क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग चर्च? कितने सुन रहे हैं इस कलीसिया? गो टू द वर्ड, वचन में जाएं, read the word for yourself, अपने लिए वचन को पढ़ें। and when you see the word जब आप वचन देखते हैं, and then you say okay, फिर आप कहें ठीक, this is what the word says. ये वचन कहता है। कितने लोग जानते हैं कि कठिन समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा बात कर सकता है? कभी कभी हम लोग सिर्फ बाइबल खोलते हैं ना, बूम, एक वर्ड बात करता है। यस, सरेंडर टू दैट वर्ड, उस वचन के अपने को समर्पित करें। and when you surrender to that word, और जब उस वचन के आप समर्पित होते हैं, the power of resurrection will be released. पुनरुत्थान की सामर्थ मुक्त हो जाएगी। आप सोचते थे कि आप जाओगे, खत्म, सब खेल खत्म, मालूम पड़ा एक नई नई शुरुआत हो रही है। उससे जो बेहतरीन, उससे बेहतरीन शुरुआत हो रही है। Even better. उससे भी बेहतरीन। How many of you following me right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त? You see, church, आप देखते कलीसिया, this is what a surrendered heart reminds the Father of His Son's sacrifice, and it releases the power of resurrection. देखिए समर्पित हृदय जो है पिता को उसके पुत्र यीशु के बलिदान को याद दिलाता है, और फिर उसके बाद पुनरुत्थान की सामर्थ मुक्त होती है। This is how transformation takes place. और इसी तरह से रूपांतरण जो है होने लग जाता है। यीशु मसीह, पूरा लहू उसका चला गया है, उसको अभी कब्र में डाल दिए हैं। अभी पावर ऑफ रेजरेक्शन रिलीज होता है, उसके अंदर खून भी नहीं है, लेकिन वो अभी पहले खून के सामर्थ से जीता था, अभी वो आत्मा के सामर्थ से बाहर आता है। Earlier you were living in your natural strength. पहले आप अपने स्वाभाविक ताकत से जी रहे थे। ओ मेरी डिग्री, मेरी ये, मेरा वो, मेरा हुनर, मेरा ये, मेरा स्वैग। अरे नहीं, अभी तुम सरेंडर करते हो, बोले बस प्रभु अभी नहीं होता, तेरी इच्छा ये कहता ना, तो मैं ठीक है वो मैं ही करूंगा। और प्रभु, सब लोग कहते हैं कि अरे इसका चैप्टर क्लोज हो गया। नहीं, when God's power is released, जब परमेश्वर की सामर्थ मुक्त होती है, you come as a new man, आप नए मनुष्य के रूप में वापस आते हैं, transformed, रूपांतरित, not by man's ideas, इंसान की योजना के मुताबिक नहीं, but by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से। Will you surrender to the will of God? आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित Lift your करेंगे। hands and begin to pray in the Spirit right अपने now. हाथ आत्मा में प्रार्थना करें इस समय, Say, Lord, I surrender to your will. और कहे कि प्रभु मैं अपने को तेरी इच्छा के लिए समर्पित करता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी यूज करना बंद करो और परमेश्वर की इच्छा पर ज्यादा ध्यान दो। Somebody open your mouth and say, Lord, I surrender my will to you. लोग तो कहें अपना मुख करके, प्रभु मैं अपनी इच्छा को तुझे समर्पित करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Go to Philippians 2, please. अपना बाइबल खोलिए सभी लोग. Open your Bibles. सभी लोग बाइबल Philippians खोलेंगे। 2, please. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Jesus humbled himself यीशु ने अपने को नम्र दीन किया। towards what? इसके बाद- Humility. Can I write it down? Humility is not talking softly. Hello. नम्रता का मतलब यह नहीं आप धीमी आवाज में बोलते हैं हेलो, How are you? कैसे हो आप। क्या एंजल है भाई, घर पे जाके तक एंजल बुलडॉग बन जाता है। You know, many boys get fooled. Be careful now of the angels. Hello. बोले क्या मीठी आवाज है बाबा, पास्टर अब की आवाज सुननी चाहिए। चुप रहे, घर पे जाके देख क्या होता है। कितने सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ह्यूमिलिटी इज नॉट एन एक्शन, इज नॉट बेंडिंग लो, टेकिंग ऑफ योर स्लीपर्स। और नम्रता का मतलब ऐसा झुकना या अपने चप्पलों को उतारना। चुप रहे, ड्रामा बंद कर। कितने लोग सुन रहे हैं? I've seen this, I'm telling you. Over these many years of pastoring, I've seen. इतने सालों की पासबान में इन्होंने देखे ऐसी चीजों को। Humility is saying, God, मैं झुकना नहीं चाहता, लेकिन तेरा वचन कहता ना, इसलिए मैं झुक जाऊं। See, that's why people so much they focus on और स्टेज पे शूज डाल के आया है, और तू नीचे सबको जूते मारता है। वो बजा, फिर से बजा। नहीं, many people say ना, स्टेज पे शूज डाल के जाने का नहीं। अच्छा,
और तू सब जूते मारता है इसको उसको, स्टेज पे शूज नहीं डालने का। अंदर के जूते उतार पहले। Are you listening, church? Absolutely. So don't get into this. Even Christian people. I'm not talking about our Christian people. आगे लोग नहीं बोल रहे, हमारे मसीही लोगों के बारे में कह रहे हैं। Pastor is wearing black today. पासवान जी ने आज काला कपड़ा पहन रखे, Devil's color. Only white. सिर्फ सफेद। And what about the scripture? God clothes himself in darkness. और पर वो वचन के How many बारे of you में read that scripture? Good, you're reading your Bible. Some people are, what? God clothes himself in darkness? परमेश्वर अपने आप को अंधकार में घेरे रखा You है। only read Chanda Mama. Read the Bible. He clothes himself in darkness. वो अपने आप को अंधकार में घेरे रखता है। Is anybody listening over here? So don't invent your own theories. तो अपने ही ऐसे अलग अलग White and chappal and this and that. Focus. Humility is saying, God, I don't feel like it. I feel like punching that guy's face in the mouth. I hate doing that. But because your word says, लेकिन क्योंकि तेरा वचन कहता है, that's humility. यह है नम्रता। Write it down. लिख लीजिए। Humility is falling in line with the word of God. नम्रता का मतलब है परमेश्वर के वचन के साथ मेल करना। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वही है सच्ची नम्रता। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? तुम सफेद कपड़े डालोगे और दुनिया का पूरा कांड करोगे तो तुम्हारा सरनेमी कांड है। कपड़ेबाज, क्या फायदा तुम्हारा? सो कपड़ों से किसी को तौलो मत। बोले इसके कपड़े अच्छे हैं, बोले बहुत अच्छा होली आदमी है, फर्स्ट रो पे बैठा है। मार दिया फर्स्ट रो वालों को। पीस भाई पीस, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु कपड़े नहीं देखता है, प्रभु तुम्हारे हृदय को देखता है। See, look at Jesus. Jesus, he humbled himself and became obedient. To what point? Everyone said, to what degree? To the point of death. मृत्यु तक। Everyone said, to the degree. You know, किस हद तक? अरे कितना झुकने का यार? कितना सहन? To the point of death. The degree of your surrender is the degree of your elevation in God's kingdom. जितनी मात्रा में आप अपने को समर्पित करते हैं, उतने ही मात्रा में परमेश्वर के राज्य में आपको ऊंचा उठाया जाएगा। Notice. गौर करें। I did not say surrender to your circumstances. I said surrender to the word. देखिए, ऐसा नहीं कहा कि आपके हालातों के लिए आप समर्पित करते हैं। नहीं, वचन के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। Many people, they surrender to the circumstance. देखिए, बहुत सारे लोग अपने को हालातों के मुताबिक समर्पित करते हैं। अपने आप को तूफान के हवाले मत करो, अपने आप को वचन के हवाले करो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बोले अभी तूफान बहुत है यार, छोड़ यार। अभी हम लोग बैठ जाते हैं, तूफान क्या करना है, उठा के फेंकना है तो फेंकने दो। No. नहीं, You surrender to the word. आप वचन के हवाले करें अपने को। To what degree? कितने So हद- the कितने स्तर? degree of your surrender, the degree of your submission is the degree of your elevation in the kingdom of God. जितनी मात्रा में आप अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए, अपने को अधीन करते हैं, उतनी मात्रा में परमेश्वर के राज्य में आपको ऊंचा उठाया जाएगा। Even the death of the cross. और मृत्यु के स्तर तक। Is this blessing you, church? क्या देखिए, Give me verse 9. Therefore, इसलिए see, surrender हो गया, exaltation आया, surrender आया, elevation आया, promotion आया. Therefore, God also has highly exalted him, that is Jesus, and given him the name which is above every name. इसलिए परमेश्वर ने भी उसको यानी यीशु को अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? In God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में the degree of your surrender is the degree of your elevation. जितनी मात्रा में आप अपने आप को समर्पित करते हैं, उतनी मात्रा में आपको ऊंचा भी उठाया जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं क्या? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं इस वक्त? Please write it down. लिख लीजिए। ऐसे सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, लिखो। कोई लोग ऐसे मुंडी लाते हैं, कुछ लिखते नहीं भैया।
You see, many people, आप देखते हैं बहुत सारे लोग, they come to church, देखिए वे कलीसिया में आते हैं, they worship Him वे उसकी आराधना करते हैं every morning, हर सुबह, maybe in the afternoon, maybe in the evening. It's good, it's good, it's या good. दोपहर में, या फिर चलो जो भी समय But अच्छा your है। surrender लेकिन समर्पण is not on just one day. सिर्फ एक दिन की ही प्रक्रिया नहीं, Your surrender has to be a daily life. आपका समर्पण जो है रोजमर्रा की जिंदगी में होना चाहिए। What are the 3 areas of your surrender? Write it down. कौन से वो 3 क्षेत्र हैं आपके समर्पण का, लिख लीजिए। First one, पहला है giving up self. खुद को त्यागना। You know, you check your life. आप अपनी जिंदगी को जांचें। It's always openly or subconsciously. मेरा क्या होगा? आपके देखिए खुलेआम या अंदर अंदर आप बोलते हैं मेरा क्या होगा। Say it everyone. I, सभी लोग कहें मैं, me, myself. इसके बारे में चलता रहता। I, me, myself. It's about yourself. It's about yourself. Even the family. Mera, mera, mera. It's about yourself. You see, man always tries to protect self. और देखिए ये जो है हमेशा अपने आप को ही बचाने की कोशिश करता है। Why don't you fast? तुमने उपवास क्यों नहीं किया? You're protecting yourself. आप अपने आप का बचाव कर रहे हैं। Why don't you intercede? क्यों आप प्रार्थना मध्यस्थी में नहीं आए? इंटरसेशन में दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे क्या मिलेगा? तेरी तो कितना सुन रहे हैं? प्रोफेटिक बोलो उसको। आज हम लोग हाथ लग रहे हैं, पास्टर सर पे बैठ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। वहां पर उन लोग तेल बटर सब लगा रहे हैं ऊपर। वहां पर मैं जाऊंगा, क्योंकि इधर तो तेल लगाते, उधर बटर भी लगाते हैं, नहीं है ना? तो थोड़ा बटर चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं आप जरा 2 घंटे के लिए प्रार्थना के लिए आ जाओ सैटरडे। उधर बटर लगाने के लिए 3 घंटा जाते हो। See, it's not about the butter and the traffic. It's about the self. बटर या ट्रैफिक के बारे में नहीं, ये खुद के बारे में है। अगर आपको मालूम पड़ेगा ना कि वहां पर कुछ बट रहा है ना, तो आप ना उधर भी जाओगे एवरी संडे। It's about the self. खुद के बारे में ये। So every day, now listen to तो me. हर दिन सुनिए, Many times, बहुत बार I feel like, why should I pray for the people? ऐसा महसूस हमको होता है, क्यों मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं? Can I share you my struggle? कि अपना संघर्ष आपके साथ बांट सकते हैं। So every morning on Sunday, I have this problem. तो हर रविवार की सुबह देखिए ये समस्या इनको होती है। So you get up early in the morning. तड़के सुबह उठते हैं Yesterday we came from Mira Road at 12:30. और रात के 12:30 बजे कल मीरा रोड से घर पहुंचे। Thanks to the traffic. You know. Come on now. Yeah. It's actually you should travel to Mira Road. You get to pray for 2 hours in the traffic. Okay. So by the time you sleep, it was like 1:45. और फिर सोते सोते 1:45 बज गए। So you get up early in the morning. फिर तड़के सुबह जल्दी उठते And हैं now और फिर the first thing comes. पहली चीज आती है, प्रभु तू जिंदा है। प्रभु तो जिंदा है। कल प्रार्थना की ना, आज क्यों करूं? Now you know a lot of scripture, ना? और देखिए बहुत सारे वचन तो आपको आते हैं। Lord, it is not my performance, it is you, Lord. सोता हूं थोड़ा सा। और प्रभु मेरे कार्यों से नहीं होता, ये तेरा ही काम है प्रभु। जब ज्यादा स्क्रिप्चर आता है ना, तो ज्यादा प्रभु से बात होती है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन अंदर से आवाज होती है, उठ के प्रार्थना कर लोगों के लिए। तेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के लिए प्रार्थना कर। बोले लोग फेथफुल नहीं यार, यहां वहां कूदते रहते, क्यों प्रार्थना करें? जो आते हैं आने दो, नहीं आते हैं ना। हेलो, that time the Holy Spirit says, उस वक्त पवित्र आत्मा कहता है, there are people that are coming who need me, Michael. और ऐसे लोग हैं जो आ रहे जिन्हें मेरी जरूरत है। Get up and pray. उठो प्रार्थना करो। It's difficult. ये मुश्किल होता है। The alarm rings, अलार्म बजता है and only the Holy Spirit can lift you from the mattress. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको आपके बिस्तर पर से उठा सकता है, Because the gravitational pull of the mattress is stronger. क्योंकि वो बिस्तर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होती है, खींचते रहती है। क्यों हंस रहे पता है? आपके घर में भी ऐसी ग्रेविटी चलती है। And then you start praying. फिर आप प्रार्थना करने लगते हैं। बोले मेरे फैमिली के लिए कौन प्रार्थना करेगा? मेरा, मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज में बढ़ना है, मुझे प्रोफेसी में बढ़ना है, इन लोगों के लिए प्रार्थना, मुझे क्या मिलेगा? गिविंग अप सेल्फ। खुद को त्यागना। This is a daily struggle of every man of God. परमेश्वर के हर एक जन का जो ये दैनिक संघर्ष है। Lord, I want to go in the barber shop and take a nice haircut. Nice, like, come on, hello. I don't know whether you feel. My son says, Dada, look at yourself. Man. Look at yourself.
I said, son, if I go and lose 1.5 hours, that fellow catches me, he does everything he wants to do. I'll do it tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow never comes. और कल कल वो कल आता ही नहीं है. That's a struggle, sir. ये संघर्ष है. Giving up yourself. खुद को त्यागना. The second one. दूसरा है. Is this helping you, somebody? Next one. अगला. To carry the anointing, see. Give me the next one. Okay, I'll tell you the next one. Giving up your ego. अपने अहंकार को त्यागना. You should know your message. Giving up your ego. अपने अहंकार को त्याग देना. Because every time क्योंकि हर बार your ego will come in the middle. आपका अहंकार बीच में आएगा. मैं क्यों करूं? मैं क्यों झुकूं? Ego आएगा. You don't go ego, okay? Look at somebody and say ego. किसी को देखकर कहे मेरे को सॉरी बोलो. तेरे ईगो के वजह से जितने तेरे ब्लेसिंग्स आने वाले थे वो रुक जाते हैं. अरे बाप को बोलना सॉरी बोल, खत्म कर रहा हूं. क्यों हमेशा मैं सॉरी क्यों बोलूं? बाप है तो क्या? अरे बाप है यार. ईगो. So you see, families are not destroyed because of the devil sometimes, but because of ego. तो आप देखते हैं कभी कभी परिवार जो है शैतान की वजह से तबाह नहीं होते, लेकिन अहंकार की वजह से हो जाते हैं. Ego. अहंकार. Look at somebody and say, no, don't look at somebody now. आँख काला हो सकता है ना. The third one. तीसरा है Making spiritual sacrifices. आत्मिक बलिदानों को करना. Spiritual sacrifices. आत्मिक बलिदान. Not physical sacrifices. शारीरिक बलिदानों को नहीं. Spiritual sacrifices. आत्मिक बलिदानों Like को. fasting. मान लीजिए उपवास. Like giving. देने के बारे Like में. praying. प्रार्थना करने के बारे में. Hello. Like reading the word. वचन पढ़ना. Come on now. Like serving the Lord. जैसे कि प्रभु की सेवा These करना. are spiritual ये sacrifices. सब आत्मिक बलिदानों को करना. So these are the 3 areas of your surrender. तो आपके समर्पण के ये 3 क्षेत्र हैं. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? 3 areas. Simple. Now you are a Bible scholar. You may have 4 and 5 and 6. God bless you. You can शायद write your आप book. बाइबल के विद्वान हो सकते हैं. आपके पास 4, 5, 6 अलग-अलग हो सकते हैं. परमेश्वर आपको So आशीष. you see, these are the areas where you are called to surrender. तो आप देखते हैं ये वो सब क्षेत्र है जहां पर आपको बुलाया गया है अपने को समर्पण करने के लिए. It's not about the miracles. ये आश्रम के बारे में नहीं है. Listen carefully. सुनिए ध्यान से. जब भी प्रभु कार्य करता है ना, सुनिए, मैं बताऊं आपको. Can I tell you the secret? क्या आपको रहस्य बता सकते हैं? I'll tell you the secret. You know, लोग है ना चमक दमक को देखते हैं. But you see, when God gives you a gift, आप देखते हैं जब परमेश्वर आपको ये वरदान देता है, can I share this? क्या आपसे बांट सकते हैं? I'll tell you a secret which many people don't know. एक रहस्य बताएंगे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते. आज I will tell you. बताएंगे आपको. You see, every man of God, every woman of God, every child of God, they come into prayer, they seek the Lord, and God in His mercy gives them a gift. देखिए परमेश्वर के हर एक सेवक या फिर सेविका या फिर उसके संतान जो है उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर उन पर दया करके उन्हें वरदान दे देता The है ministry takes off. और उनकी सेवकाई जो उड़ान पकड़ लेती है. Now it's a gift. अब ये तो एक वरदान है. Hello. It's a gift. तो गिफ्ट काम करेगा. तो वरदान काम करता है. काम करेगा. हेलो 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 हेलो. सबसे बोलिए, जो परमेश्वर गिफ्ट देता है वापस नहीं लेता है. बहुत बड़ी बात है. पास्टर ये स्क्रिप्चर में क्यों तो लिखा? मैं बताता हूं. The Bible says बाइबल कहती the है gifts and the calling of God are irrevocable. In other words, God doesn't take them back. परमेश्वर के How many of you know वरदान और that परमेश्वर की scripture? बुलाहट जो है Thank वे you. अटल है, यानी कि परमेश्वर वापस नहीं लेता. So now, तो अब no matter in which situation you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस हालात में हैं. you are angry, आपको गुस्सा आया you हुआ, are living this life, that life, आप ऐसे वैसे जिंदगी जी रहे हैं, the gift will work. बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है. That person is not living right. वो व्यक्ति सही जिंदगी नहीं जी रहा है, Still the gift will work. फिर भी वरदान काम करेंगे. Now the people don't know. लोग नहीं जानते इस बात को, Only the close people know. सिर्फ करीबी लोग ही जानेंगे. The far people only see the advertisement. और दूर के लोग सिर्फ विज्ञापन को देखेंगे, इश्तिहार को देखेंगे. That was advertisement. ये था इश्तिहार. Public. थोड़ा म्यूजिक डाला. क्या मैं चाह रहा हूं.
I told you at the start. शुरू में आपको पता है, Is anybody listening over क्या here? सुन रहे हैं यहाँ पे? How is that person's life? कैसे है उस व्यक्ति का जिंदगी? Nobody knows. कोई नहीं जानता. Come, what's your name? How many of you saw yesterday? कल कितने लोगों ने देखा? See, the gift will work. Come. देखिए वरदान काम करेंगे. You come. तुम यहाँ Now आओ. the gift is there. देखिए वरदान है Somebody has laid hands. और किसी ने हाथ An रखा impartation is there. और वरदान आप में डाला That गया gift will work. और वरदान काम करेगा. अरे 26 साल हो गए प्रभु के लिए 40 days, 30 days, 21 days, ये डे वो डे काम तो करेगा. But now, लेकिन अब what about that person's life? उस व्यक्ति के जिंदगी के बारे में क्या? Is he crucifying self daily? क्या वो खुद को रोज क्रूस पर चढ़ा रहा है? Nobody knows that. कोई नहीं जानता. Look at somebody and say nobody knows that. किसी को देख रहा कोई नहीं जानता. सिर्फ करीबी लोग जानते हैं. अभी आप लोग जो पीछे बैठे, आप लोग तो मेरे घर के नजदीक भी नहीं आए होंगे. उस फैमिली को नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग हैं. Only they know it. सिर्फ वही लोग जानते हैं. This is where the trouble is. और यहीं पर मुसीबत आती. Crucifying the ego. और अहंकार को क्रूस पर चढ़ाना. Earlier you were like so this now making spiritual. Is that man of God praying? Is that child of God praying, fasting, seeking God? एयरपोर्ट से उतरा, गाड़ी में आया, 5 करोड़ की गाड़ी. हेलो, आप लोग तैयार हैं क्या? पब्लिक चिल्ला रहे, हाँ आप लोग तैयार हैं. पीछे से लाइट ड्रम बज रहे, आग उठ रही है, पब्लिक बोल रही मैं. That's what happens to your life also. यही होता है आपकी जिंदगी के साथ भी. The gift will work. वरदान काम करेंगे. The style will work. स्टाइल काम करेगा. But God does not measure you. And slowly but surely there will be a decline. और धीरे धीरे लेकिन यकीनन घटने नीचे जाने का स्तर शुरू होगा. By the time it's too late. और तब तक बहुत देरी हो जाती है. That's why Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा. Many, go to Matthew 7. You know in what context? Everyone say what context? किस संदर्भ में? Can I teach you this? क्या आपको बता सकते हैं? Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied? You know, some people say, oh, इसका मतलब देखा, यीशु ने बोला prophecy नहीं करने का. Abish, foolish fellow. It talks in the context of surrender. और देखिए ये जो है समर्पण के संदर्भ में बोल रहा है. Even Jesus prophesied. यीशु ने भी तो Even भविष्यवाणी की. Paul prophesied. पौलुस ने भी भविष्यवाणी की. Come on now. चलिए. Men of God prophesied, but their lives, their character, that's where the transformation is. लेकिन उनकी जिंदगी, उनका चरित्र देखिए वहीं पर रूपांतरण कार्य करता है. Prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name. प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आशिकम नहीं किए? Then I will declare to you, तब मैं उनसे कहूंगा, to them, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस वरदान में चल सकते हैं और खुदा को नहीं जान सकते? हाँ. Yes. Depart from me who practice lawlessness, who don't have discipline, who don't walk in surrender. जिनके पास अनुशासन नहीं होता, जो समर्पण में नहीं चलते. Practice lawlessness. समझो बोलो lawlessness. अधर्म को काम में लगाने What वाले. is lawlessness? Not following the rules. अधर्म का करने वाले मतलब जो नियम का पालन नहीं करना. That is why इसलिए you need to see the man's life. You need to see the woman's life before you connect with that person. उस स्त्री या उस पुरुष की जिंदगी को अच्छे से आपको जांचना है इससे पहले कि आप उनसे जुड़े. How many understanding right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. It's not the Facebook advertisement. कोई फेसबुक का इश्तेहार नहीं. It's not the Instagram ad, no, and the reel, no sir. ये इंस्टाग्राम का कोई एड या रील नहीं. Does that man of God, does that child of God walk with the Lord? Not just the gift, his daily life. He's come on. या परमेश्वर का वो जन या परमेश्वर के संतान रोज परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं दैनिक रोज जिंदगी में. कोई लोग तो पूरा बेबी को ही उठा के फेंक देता है, टब भी फेंक देता है, बेबी को भी फेंक देता है. बोले टब में प्रॉब्लम है तो बेबी भी बाहर. Don't throw out prophecy, don't throw out healings, don't throw out signs and wonders. It speaks about the character of the individual. और देखिए भविष्यवाणियों को, चंगाई को, आश्चर्यकर्मों को, चिन्ह चमत्कारों को देखिए फेंकना Write नहीं it है. down, we close. Write it down. लिख लीजिए. Say it everyone. The call to total surrender. और संपूर्ण समर्पण की बुलाहट. Write it down. A person's private life,
His surrender is seen in his private life. और देखिए एक व्यक्ति का समर्पण जो है उसके निजी व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देता है, गुप्त Say जीवन it में दिखाई again. एक व्यक्ति का समर्पण उसके निजी या गुप्त जीवन में दिखाई पड़ता है। हाँ, उसके गुप्त जीवन में दिखाई पड़ता है। कोई टी शर्ट थोड़ी डालता है ऐसा, आई एम सरेंडर्ड। कोई टी शर्ट पीछे डालता है क्या, मेरा जीवन अभी प्रभु का है। ऐसे ऐसे लोगों के पीछे जाओ ही मत। अपनी निजी जिंदगी में आप देख सकते हैं कि आपका जीवन सरेंडर्ड है या नहीं है। आपके जीवन को जांचिए। पास्टर जी गिफ्ट काम करेगा, जरूर 100% काम करेगा। Is anybody being blessed over here? या कोई आशीषित हो रहे हैं यहाँ पे? Hallelujah. So how this transformation takes place? तो कैसे रूपांतरण का कार्य होने लगता है? Transformation takes place through surrender. रूपांतरण का कार्य होता है समर्पण के जरिए। People's lives get changed. लोगों की जिंदगी बदल जाती है। People start falling in love with God. लोग परमेश्वर के प्रेम में दीवाने होने लग जाते हैं। Their prayer lives increase. उनका प्रार्थना जीवन बढ़ जाता है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Many people, they just want उनके business में थोड़ा आशीष, पास्टर थोड़ा सा फूक दो ना, फू, हाँ ये ले, चल मेरा बिजनेस बढ़ गया। ठीक है, बिजनेस बढ़ गया, लेकिन तेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया क्या? पास्टर थोड़ा सा इधर थोड़ा हाथ लगाओ, अच्छा ठीक है, पास्टर थोड़ा सा इधर, अच्छा ठीक है, मेरा नेक ठीक हो गया। तेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई क्या? Your life, आपकी जिंदगी। only then, write it down, last one. आखिरी लिख लीजिए। Your surrender will be the foundation of your calling. आपका समर्पण ही आपकी बुलाहट की बुनियाद है। This is deep, brother. ये सबके लिए नहीं है। Your surrender आपका is the समर्पण- foundation of your calling. आपका समर्पण ही आपकी बुलाहट की बुनियाद है। पास्टर जी मुझे संडे को बहुत काम होता है, टीना बुलाती है, मीना भी बुलाती है, किधर जाऊं पता नहीं। पास्टर जी मेरा दिल टूट जाता है। टूटने दे, अभी चर्च में आ जा। हैरी भी बुलाता है, पास्टर जी उसका फोन आया था रंगशारदा के गेट पे, हैरी ने बुलाया। हैरी का फोन काट दे, यीशु के कॉल को अटेंड कर, अंदर घुस जा। सरेंडर, सरेंडर, समर्पण। नहीं आप लोग हंस रहे हैं, पीछे वाले लोग दुख में है। हाँ, सरेंडर, जोर से बोले सरेंडर। बोलिए, हाँ, मैं देख रहा हूँ सामने वाले खाली दांत दिखा रहे हैं, बाकी के लोग एकदम शायद आपको कॉल आया होगा। Your surrender is the foundation of your call. आपका समर्पण जो है यह आपकी बुलाहट की बुनियाद है। जब आप सरेंडर करते हो ना, there was a woman called Catherine Kuhlman. She loved somebody. वो किसी से प्यार करती थी। Listen, she was a young woman वो एक नौजवान महिला थी and she loved one man. और एक आदमी से वो प्यार करने लगी। ऐसा क्यों देख रहे हो यार? She loved. वो प्यार करने लगी। She loved somebody. किसी से प्यार करने लग गई। And one day, और एक दिन God spoke to her परमेश्वर ने से बात किया। and said, "My daughter, परमेश्वर ने कहा, मेरी बेटी will you surrender the love of your life to me so that I can become your only love?" क्या तुम तुम्हारी जिंदगी का जो प्यार है उसे तुम मुझे समर्पित करोगी ताकि मैं ही तुम्हारा एकमात्र प्रेम बन जाऊं? She cried for many days. कई दिनों तक वो रोती रही। She wept for many days. कई दिनों तक बिलक बिलक कर रोई। And one day, और एक दिन she was walking on a road सड़क पर वो चल रही थी alone. अकेले। And that day, she writes in her book, और उस दिन देखिए अपनी पुस्तक में वो लिख के on बना, that road, उस सड़क पर Catherine Coleman died. कैथरीन कुलमन मर गई। She writes in her book. अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है। When I read that, जब इन्होंने पढ़ा even I cried. ये भी रो पड़े। Because you see, God will never use a person क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर कभी किसी ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा until he surrendered to his will. जब तक वो उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो। थोड़ा इधर उधर है, कवर बांटने के लिए कवर चलता है। मैंने प्रीच किया फेसबुक लाइव पर, कोई भी कर सकता है। आजकल डॉगी लोग भी फेसबुक पे आते हैं, प्रेयर भी करते हैं, पास्टर भी कर। मेरा बेटा भी ऐसा कोई डॉगी लोग को लेता है, ऐसा करता है, वो बड़ी बात नहीं है। That day, उस दिन Catherine Kuhlman rose up in the anointing.
कहते हैं कुलमन जी अभिषेक में उठी, Her ministry touched the उनकी nations. सेवकाई ने राष्ट्रों को छुआ. Her ministry, even today her videos are there. आज भी उनकी वीडियोस मिलेंगे. That people see and receive the anointing. लोग उन वीडियो को देखकर अभिषेक ग्रहण करते People हैं. have those letters of hers which she wrote. When they lay hands on that, they begin to speak in tongues. और लोगों के पास उनके लिखे हुए खत भी हैं, उन पर वे हाथ रखते हैं तो वे अन्य भाषा बोलने का वरदान पा लेते हैं. Your level of surrender. आपके समर्पण का स्तर. You feel like doing many things. आपको महसूस होता है बहुत सारी चीजें करने का, But your surrender, what stops you? क्या चीज आपको रोकती है? आप समर्पित नहीं, यही Your surrender. आपका समर्पण. Say it everyone, what true surrender looks like. Surrender involves giving to God what He wants. और समर्पण में देखिए परमेश्वर को वो देना जो वो चाहता है शामिल है. What true surrender looks like, write it down, one sentence. Giving to God what He wants. सच्चा समर्पण क्या है? एक वाक्य में लिख लीजिए. देखिए परमेश्वर को वो देना जो वो चाहता है. सब जन जोर से बोलिए, सच्चा सरेंडर क्या है? जोर से बोलिए. और एक बार बोलिए, फिर से एक बार बोले, सच्चा सरेंडर क्या है? प्रभु को वो दो जो वो चाहता है. प्रभु तू क्या चाहता है? अब्राहम के पास प्रभु आता है, कहता है बेटा तेरे पास 318 सेवक लोग हैं. प्रभु, अब्राहम ने कहा होगा प्रभु मेरा बेटा इतने सालों के बाद आया, प्रभु ये 318 को ले लेना, ऑफर चल रहा है. बोले एक पे 318. मैं प्रभु रहता तो बोलते दे दे. 318 किधर भाई और एक किधर? प्रभु कहता है अब्राहम तेरा ऑफर तेरे पास रख. क्योंकि हम लोग भी प्रभु को ऑफर देते हैं ना कभी कभी. प्रभु तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ये ले प्रभु. प्रभु बोलता जो मैं मांग रहा हूं वो दे. और वही है तेरा सरेंडर. आज प्रभु आपसे क्या मांग रहा है? शायद किसी से समय मांग रहा है, किसी से पैसे मांग रहा है, किसी से फॉरगिवनेस मांग रहा है, किसी के साथ कुछ तो मांग रहा है. Everyone it will be different. हर एक के लिए अलग अलग होगा. अपने पड़ोसी से कहो सबके साथ अलग अलग होगा. प्रभु आपसे क्या मांग रहा है? To forgive somebody. For some people it may be giving your tithe. For some people it may be praying. Some people it may be reading the word daily. किसी के लिए क्या है प्रभु किसी आपसे? के लिए प्रार्थना करना या रोज वचन पढ़ना है. क्या चीज है जो परमेश्वर मांग रहा है? The pathway to surrender. समर्पण के लिए And महामार्ग. only then can you be transformed. केवल तभी आप रूपांतरित हो सकते हैं. Galatians 2:20, living by faith in the Son of God. 2 Corinthians 3:18, be transformed from glory to glory. Pastor, how? Surrendering to God. Hallelujah.